Hello students, my name is Dr. Ivogna. Today I will teach you a very important topic from class 12th CBSE board, and the chapter name is Agriculture, Industry and Trade 1950 to 90. In this topic I will tell you what is import substitution and imports, what is the why import substitution, what is the importance of import substitution, why it is required during 1950 to 1990. So first of all I will tell you what is import substitution. इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीन्स क्या होता है? इट मीन इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन का मीन्स हो गया रिप्लेसिंग द इंपोर्ट. वी कैन से इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन मीन्स रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड्स बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स. मीन्स रिप्लेसिंग द हाउ वी कैन डिफाइन रिप्लेसिंग द इंपोर्टेड गुड्स बाय डोमेस्टिक प्रोड्यूस गुड्स. रिप्लेसिंग द imported goods by replacing the imported goods by domestic produced goods, by domestic produced goods. It means that we can replace the imported goods with domestic goods in simple manner. We can say we can replace imported goods with domestic goods, that is known as import substitution. Now note what will happen. First point, what will import substitution mean? What is the main focus of this import substitution goods? What it implies? It implies, number one, it implies that the domestic production of those goods, it means that domestic production of those goods, number one, domestic production of those goods means we can produce those goods, domestic production of those goods which the economy has been imported, which the economy has been import from rest of the world, has been import from rest of the world. बट ध्यान समझेगा, it means the domestic production of those goods which the economy has been import from rest of the world. This is the first point which I am telling you. Second point, the government wanted to protect the domestic industry. Government wanted to protect domestic industry, government wanted to protect what domestic industry from international competition, from international competition. So students, 2 points I have already explained. Import substitution means replacing the imported goods by domestic produced goods. Number one, it means that domestic production of those goods which the economy has been import from rest of the world. Government wanted to protect domestic goods industry from international competition. गवर्नमेंट अपने डोमेस्टिक गुड्स को बचाना चाहती है और वो ये कहती है कि हम जो इंपोर्ट गुड्स कर रहे हैं वो अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही बनाए, वो गुड्स अपनी कंट्री में ही वो गुड्स बनाए, हमें इंपोर्ट करने की जरूरत ना पड़े. ठीक है, तो ये बच्चों को मैंने 2 पॉइंट समझाया इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में. नाउ थर्ड पॉइंट रिगार्डिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, that protection took place in the form of tariff and quotas. Third, protection took place in the form of tariffs and quotas. Protection took place in the form of tariffs and quotas. Now what is the tariff? Tariff, we can say that is a tax on imported good. Means tariff means
If you talk about the tariffs, tariff means tax imposed on imported goods, टैक्स टैरिफ का मीन्स क्या हुआ? टैरिफ मीन्स टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स विच मेक देम कॉस्टलियर, जो कि उसे क्या बना देगा? कॉस्टलियर बना देगा। विच मेक देम कॉस्टलियर, महंगा बना देगा। मीन्स हमें क्या कर देना? उस पर टैक्स लगा दें। टैरिफ का मतलब एक प्रकार से टैक्स हो गया, और जिसके कारण क्या हो गया? वो गुड्स क्या हो जाएगा? कॉस्टलियर, विच मेक्स देम कॉस्टलियर। नाउ व्हाट इज कोटाज? Cotage, if you talk about the cotage means maximum quantity of, means we can say that cotage means maximum quantity of imported goods, maximum quantity of imported goods, है ना? Maximum quantity of imported goods. 3 points I have already explained. Now fourth point, students, we can say that tariffs and quotas together discourage and restrict it. We can say this tariffs and quotas, ये क्या करेंगे? What they will do? ये क्या करेंगे? they together, tariffs and quotas together discourage imported goods, discourage imported goods and protect domestic industry, okay? Means tariff and quotas together discourage imported goods and protect what? Domestic industry. So these 4 point I have already explained you, okay? Now last point, the policy of import substitution क्या कहता है? Fourth point which I am telling you, fourth point, what is the import substitution? Fourth point, import substitution से होता क्या है? What will happen? Policy of import substitution was aimed at the policy of import substitution was aimed at, उसका जो मेन एम्ड है was aimed at, हम ये कहते हैं उसका जो मेन एम्ड है सेविंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन वन एंड, was aimed at saving of फॉरेन एक्सचेंज को बचाना, foreign exchange, we can say that foreign exchange, foreign exchange in one hand, एक तरफ तो फॉरेन एक्सचेंज बचाना, और दूसरी पता है अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, एंड वी कैन से अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंस, तो स्टूडेंट्स आज मैंने आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से मैंने आज बच्चों को इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन गुड्स बताया, और मैंने बताया कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का गुड्स का मतलब ये हो गया कि हमको क्या करना है, रिप्लेसिंग इंपोर्टेड गुड्स को रिप्लेस करना है और अपने डोमेस्टिक कंट्री में ही उस गुड्स को बनाना है। हमको बाहर के गुड, विदेशी गुड्स नहीं लेना, उस गुड्स की जगह अपने ही कंट्री में डोमेस्टिक गुड्स को बनाना है। दूसरा, मैंने इसके बड़े फ़ायदे बताए, 4-5 पॉइंट बताए मैंने बच्चों को। पहला पॉइंट मैंने बताया कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, नंबर 1 है ना, ताकि हम बाहर से विदेश से कोई चीज़ मंगा ना सके। दूसरा पॉइंट उन्होंने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन में ये करा, कि सबसे पहले उन्होंने टैरिफ एंड कोटा लगा दिया। टैरिफ का मतलब टैक्स लगा दिया एक तरफ से इंपोर्टेड गुड्स में, जिसके कारण वो कॉस्टलियर बन गया, और कोटा लगा दिया, एक मैक्सिमम लिमिट लगा दी इंपोर्टेड गुड्स की। ठीक है, टैरिफ और कोटा से बड़ी दिक्कत आ गई, तो हमारा इंपोर्ट क्या हो गया, कम हो गया, और हमने डोमेस्टिक गुड्स को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। तीसरा, उससे क्या, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी क्या हो गया, इससे हमारा कम हो गया। फॉरेन एक्सचेंज रेट बाहर से जब हम डोमेस्टिक गुड्स में बना रहे हैं, इंपोर्ट कर नहीं रहे, तो फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, कम होगी हमारी।
इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन। तभी तो हमारे यहाँ आपको तभी ये पॉलिसी चेंज करी, तभी हमने कोशिश करा 1991 में आपने देखा होगा, हमने पॉलिसी पूरी चेंज करी और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लाई। इसी की वजह से हमने बाद में जब हमने क्या करा, विदेश से भी इंपोर्ट करी और एक्सपोर्ट करना हमने क्या करा, बढ़ाना शुरू करा हमारे देश ने। और ये मैंने आपको सारी चीज़ें बताई कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स क्या क्या होता है, किस तरीके से हमने टैरिफ ड्यूटी लगाई, किस तरीके से हमने कोटा लगाया, किस तरीके से हमने इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स डोमेस्टिक कंट्री में बनाए, किस तरीके से हमने अपने डोमेस्टिक गुड्स को बढ़ावा दिया ताकि हमारे लोगों को रोज़गार बढ़े। ये बात हम कर रहे हैं, ये बात हम इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन स्ट्रेटजी हम पढ़ रहे हैं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आज मैंने आपको बच्चों को ये इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन गुड्स पढ़ाया। चैप्टर थर्ड आपका इंडस्ट्री एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रेड 1950-90 का ये सीबीएसई का चैप्टर है। मैंने ऑलरेडी मैक्रो इकोनॉमिक्स के सीबीएसई के जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत बढ़िया तरीके से मैंने अपने यूट्यूब में डाल दिए हैं। आईसीएसई बोर्ड का तो मैंने 100% डाल दिया है पूरा। आईसीएसई बोर्ड के जितने भी चैप्टर, चाहे वो माइक्रो के चाहे मैक्रो के, मैंने 100% अपलोड कर दिए अपने यूट्यूब चैनल में। फिर भी मुझे जो टॉपिक अच्छा लगता रहेगा, न्यूमेरिकल अच्छा लगता रहेगा, मैं अपलोड करता रहूँगा बच्चों के लिए। और सीबीएसई का मैक्सिमम मैंने मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने ऑलमोस्ट सारी वीडियोस डाल दी हैं और अपने अपलोड कर दिए हैं। उसके बाद मैंने ये जो है, आज मैं चैप्टर थर्ड कुछ टॉपिक छूट गए हैं, वो मैं इंडियन इकोनॉमी के कराने जा रहा हूँ। ये मैं उसी में से एक टॉपिक है। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री या ट्रेड, इसको जरूर पढ़िए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल। यही हमारे लिए एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे उसको आगे बढ़ा रहे हैं, यही उसका हमारा लिए अचीवमेंट है और कुछ नहीं। थैंक्स डॉक्टर वी भगना।